Assalamu alaikum, dear aspirants. Let me know if I am audible to you. Please let me know if I am audible to you. Anyone can respond. Walaikum Assalam, Mr. Muhammad Munib. Please let me know if I am audible to you. Yes, okay. Let's start our today's lecture. Our today's lecture is about weapons of mass destruction. And in start of the lecture, I admit I'm not expert in this field. I may misquote the fact, so in this case you can correct me. So after this acknowledgement, let's start our today's lecture. Generally, weapon of mass destruction is a kind of weapon which can bring significant harm, a large number of human casualties. It can cause great damage to man-made structure, natural structure, or the biosphere in general. Three types of weapons they are included in weapons of mass destruction. All types of chemical, biological, and nuclear weapons, they all include in weapons of mass destruction. As far as chemical and biological weapons are concerned, we are not going to discuss them in detail today, because there is a consensus all over the world that production, use, and spread of the chemical and biological weapons is abundant. So as such, there is no disagreement. There are a few small incidents. There was an incident in Syria. Saddam Hussein used against Kurd in Iraq, and a few years back there was an incident of chemical weapon, sarin gas in Japan. So there were few incidents which took place in which chemical or biological weapons are used, but by and large, no states is involved in producing, manufacturing, using chemical or biological weapon. So mainly we'll do focus towards nuclear weapons. The threat of the nuclear weapons of mass destruction pose the entire human civilization and the whole of the humanity in a serious danger. There are different sorts of people who worry about lack of patriotic, linguistic, religious, ethnic, important values in a society. But the real threat, human civilization, since since its existence, they are facing, that is a nuclear weapon. And when we talk about the proliferation of the nuclear weapon, proliferation means spread of the nuclear weapon. It was the USA that first developed the nuclear weapon during the World War II. The project name was Manhattan. It was a research-based project. Initially, US didn't invested a lot of money in Manhattan project. But when in 1941, when US came under attack by Japan at their Pearl Harbor port, then they started investing a huge amount of money in Manhattan project. उससे पहले मैनहट्टन प्रोजेक्ट के ऊपर यूएस ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की थी. In human history, दो दफा न्यूक्लियर वेपन यूज हुआ, and it resulted more than 250,000 deaths immediately. It was used in 1945 in Hiroshima and Nagasaki.
Due to the Cold War, the USS was alarmed and acquired it in 1949. US ने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन एक्वायर किया. उसके बाद जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो यूएसए का जो राइवल सोवियत रशिया था, she acquired nuclear weapon in 1949. Later, UK acquired nuclear weapon in 1953. France acquired in 1957, and China in 1964. So, in other words, we can say within the 20 years of World War II, 5 countries became nuclear power, and it is all because of the nuclear proliferation. If we trace out the history of the nuclear proliferation, the most guilty country will found that is USA, क्योंकि सबसे पहले जो न्यूक्लियर वेपन था वो यूएसए के पास था. अगर यूएसए somehow न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अंदर इन्वॉल्व ना होता तो शायद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इतने इजीली जो बाकी कंट्रीज हैं उनको ट्रांसफर ना होती. सो इंटेंशनली यूएस ने जो उसके अलाइज थे यूके, फ्रांस, उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और फिर रिजल्टेंटली इट गेव बर्थ टू अ बिग इंटरनेशनल न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट. इस वक्त भी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट है और पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट से इंपोर्ट की. और आपने अब्दुल कदीर खान नेटवर्क के बारे में सुना होगा, ठीक है, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशंस में. तो ग्रेजुअली क्योंकि उनको पता था कि इंटरनेशनल जो न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट है उससे टेक्नोलॉजी और जो टूल्स हैं वो कैसे इंपोर्ट करने हैं और ये कितना प्रॉफिटेबल काम है, तो कदीर खान भी इसमें टू सम एक्सटेंट इन्वॉल्व रहे. जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट का नेटवर्क था. अच्छा, लीव दिस डिबेट हियर. Global nuclear proliferation has its impact in South Asia. After China becoming nuclear power, Indian Prime Minister stated that India would become nuclear power within 10 years. So exactly after 10 years, India conducted its first nuclear test, termed them as a smiling Buddha. Those tests were conducted in 1974. So earlier it was a statement Indian Prime Minister gave in 1964. 62 में war हुई है चाइना और इंडिया की. उसके बाद इंडिया ने अपने न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जो वर्क पेस है उसको इंक्रीज किया और एग्जैक्टली आफ्टर 10 years 1974 में इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया एंड दे named their first nuclear test Smiling Buddha. You know, Buddha is a symbol of peace and non-violence, and उन्होंने जो अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट को नाम दिया वो स्माइलिंग बुद्धा था, ठीक है. सो लॉट्स ऑफ एग्जैजरेशन. सो 1974 में इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने जुल्फकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर को स्टार्ट किया, ठीक है. 1974 ये वो टाइम पीरियड है जिसमें ओआईसी की आई गेस सेकंड समिट पाकिस्तान में हुई लाहौर में और ओआईसी की उस समिट में शाह फैसल भी मौजूद थे. इसके अलावा यासिर अराफात थे, मुअम्मर कज़ाफी थे. तो जितने मुस्लिम कंट्रीज थी दे बैक पाकिस्तान. उन्होंने स्पेशली शाह फैसल ने कहा कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है इसमें मुकम्मल सपोर्ट करेंगे. जुल्फकार अली भुट्टो की बड़ी फेमस स्टेटमेंट भी है कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम जरूर बनाएंगे. ऐसे कुछ मिथ्स हैं जो एटम बम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है. दीज मिथ्स आर नॉट रियल, ठीक है. एक उनमें से कुछ को मैं कोशिश करूंगा कि वो मिथ जोन सी है वो कितनी वैलिड है. उनमें से एक मिथ ये है कि जो न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है या जो एटम बम या न्यूक्लियर बम है ये बहुत कॉस्टली है, ठीक है. और जैसे जुल्फकार अली भुट्टो साहब की स्टेटमेंट थी कि हम घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने ठीक ठाक एटम बम बना लिए और हम में से किसी को भी घास नहीं खानी पड़ी,
तो ये कहना है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये बहुत कॉस्टली है और इस पर काम करने से जो इकोनॉमी है वो सफर करती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, रिलेटिवली टू सम एक्सटेंट इसकी कॉस्ट है, ठीक है, लेकिन ये कोई एक्सट्रीमली कॉस्टली किस्म का प्रोजेक्ट नहीं है, और ऐसा ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि ये कोई टॉप सीक्रेट है दुनिया का और दुनिया का कोई मुल्क भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं विच आर केपेबल ऑफ मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। लेकिन कुछ कंपल्शन है, उनमें से एक कंपल्शन ये है कि आपके पास कांस्टेंट सप्लाई ऑफ जो फिसाइल मटेरियल है दैट वुड बी इंश्योर्ड। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फिसाइल मटेरियल रेफर्स टू द इनरिच यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। अगर आपके पास कांस्टेंट सप्लाई नहीं है जो न्यूक्लियर फ्यूल है जो कि यूरेनियम या प्लूटोनियम की फॉर्म में है, और वो इंडिजिनस रिसोर्सेज से आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप फॉर ए लॉन्गर टाइम पीरियड यू कांट बारो इनरिच यूरेनियम और प्लूटोनियम फ्रॉम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ऐसे नहीं हो सकता कि आप पूरा आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो उनसे है वो बारोड न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर चल रहा हो। पाकिस्तान के पास डेरा गाजी खान के अंदर अबंडेंट रिजर्व्स हैं यूरेनियम के, हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और ग्रेजुअली हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो प्रोग्रेस कर रहा है। लेटर ऑन एक और हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत बड़ी मिथ है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। बेसिकली हम इवन मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को देखा, they all are proudly saying that Pakistan nuclear program is the fastest growing nuclear program of the world. Exactly ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्राम है। बेसिकली पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मेलाइन करने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, एंड अननोइंगली वी बिकेम पार्ट ऑफ दैट प्रोपेगेंडा। मैं इसके ऊपर बात करूंगा जब मैं पाकिस्तान और इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कितना फास्टेस्ट ग्रोइंग है। जब हम बात करते हैं, अच्छा ये जो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, बेसिकली ये जो आईआर का सीएसएस के जो आईआर का पेपर 2 है उसमें इससे रिलेटेड वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो पेपर 2 के में अगर आप पेपर 2 की आईआर सीएसएस आईआर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो लेक्चर है आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। Pakistan conducted nuclear test in May 1998 in response to the Indian test. North Korea has recently conducted nuclear test. Israel is also an undeclared nuclear power. Iran had the ambitions to get it, but due to Western sanction, it has agreed to an agreement which would delay it by 15 years. So पाकिस्तान ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, एज यू नो कि उससे पहले इंडिया अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था। अच्छा, जनरली जो न्यूक्लियर बॉम्ब है इसको डेवलप करने के हमारे पास 2 रूट हैं, एक यूरेनियम रूट है और दूसरा प्लूटोनियम रूट है। जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये बेस करता है यूरेनियम रूट के ऊपर, और जो इंडिया का प्रोग्राम है वो प्लूटोनियम रूट के ऊपर था। 1961 में when Pakistan was a member of CETO and CENTO, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, they installed a first nuclear power station in Pakistan, ठीक है। 1961 में हमारे पास न्यूक्लियर पावर स्टेशन था, और जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है जो कि बेसिकली पाकिस्तान में जो एटॉमिक एनर्जी है उसमें जो डेवलपमेंट्स है उसको इंश्योर करने के लिए फॉर्म किया गया था 1956 में। तो पाकिस्तान उन कुछ मुल्कों में है जिन्होंने बहुत अर्ली टाइम पीरियड में न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया था। यानी कि पाकिस्तान ने 1956 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना लिया था। 1961 में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर रिएक्टर थे, और कराची में विद द हेल्प ऑफ फ्रांस वी इंस्टॉल देम, और वहां से हम न्यूक्लियर पावर जनरेशन कर रहे थे। और वो जो कराची का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर था उसका जो फ्यूल आता था वो फ्रांस से आता था।
اور 1968 میں نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی جون سا ہے اٹ کیم آن ٹو دا سرفیس, اور اس میں بہت سارے ملکوں سے کہا گیا کہ وہ اس کے اوپر سائن کریں. ریسنٹلی صرف 3-4 کنٹریز ہیں جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے اس سے باہر ہیں, صرف 4 کنٹریز ہیں. ان 4 کنٹریز میں پاکستان ہے, انڈیا ہے, اسرائیل ہے اور نارتھ کوریا ہے. تو یہ 4 کنٹریز ہیں جو این پی ٹی سے باہر ہیں, اور اس کے علاوہ تقریباً ساری کنٹریز دے آر سگنیٹریز آف این پی ٹی. 1968 میں این پی ٹی آیا, اٹ گاٹ میچورڈ ان 1970, اور لکیلی کہ جب یہ 1970 میں یہ ٹریٹی میچورڈ ہوا تو لکیلی پاکستان نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے. اگر 1970 میں پاکستان این پی ٹی کے اوپر سائن کر دیتا تو 1974 میں ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام سٹارٹ نہیں کر سکتے تھے. تو مطلب آپ کہہ لیں کہ ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے 1970 میں این پی ٹی کے اوپر سائن نہیں کیا, ورنہ 1974 میں ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ریسٹرکشن لگ جاتی. ایران کے نیوکلیئر پروگرامز کے اوپر بڑی ریسٹرکشن ہے کیونکہ ایران بیسیکلی این پی ٹی کا سگنیٹری ہے, اور بینگ اے سگنیٹری آف این پی ٹی, ٹھیک ہے, یو کانٹ انرچ یورینیم مور دین 5%. ٹھیک ہے, جنرلی انرچ یورینیم یوز ہوتا ہے نیوکلیئر پاور جنریشن میں بھی اور نیوکلیئر ویپن میں بھی, لیکن جو اس کی انرچ پرسنٹیج ہے وہ ڈفرینٹ ہے. پاور جنریشن کے لیے جو ہم انرچ یورینیم یوز کرتے ہیں جنرلی 3 to 5%, اور جو ویپن کے اندر انرچ یورینیم ہوتا ہے اٹس اراؤنڈ اباؤٹ مور دین 90%. تو کیونکہ آپ پیسفل پرپزز کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں, تو 3 to 5% یورینیم, ٹھیک ہے, انڈر دا سیف گارڈ آف IIUI. دنیا کے اندر بہت ساری نان پرولیفریشن رجیمز ہیں, ان میں این پی ٹی ایک ہے, اور دوسری سب سے فیمس جو نان پرولیفریشن رجیم ہے وہ IIUI ہے. ٹھیک ہے, IIUI جو سی ہے وہ سیف گارڈ ڈیفائن کرتی ہے پیسفل یوز آف نیوکلیئر انرجی, اور جو کنٹریز این پی ٹی کے سگنیٹری ہیں دے آر باؤنڈ کہ ان کی جتنا نیوکلیئر انسٹالمنٹ ہے وہ IIUI کے جو سیف گارڈز ہیں ان کو میٹ کرتی ہیں, اور وہ IIUI ان کو پراپرلی مانیٹر کرتا ہے. اور ایون پاکستان کا بھی جو سویلین نیوکلیئر پروگرام ہے, ٹھیک ہے, اٹ فلی سیف گارڈیڈ انڈر IIUI. اور انڈیا کا سویلین پروگرام جو سا ہے اس کا کچھ حصہ IIUI سیف گارڈیڈ ہے اور کچھ حصہ IIUI کے جو سیف گارڈ ہے ان سے باہر ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا جو ایون پاکستان انڈیا دونوں کا جو ملٹری پروگرام ہے, ملٹری نیوکلیئر پروگرام ہے, وہ IIUI کے جو سیف گارڈ ہیں ان سے وہ باہر ہے. تو IIUI جو سا ہے وہ مانیٹر کرتا ہے پیسفل ٹرانسفر آف نیوکلیئر انرجی. ایز سچ پاکستان کا نیوکلیئر ڈاکٹرائن ہمارے پاس پبلش فارم میں نہیں ہے, بٹ انڈیا نے اپنا نیوکلیئر ڈاکٹرائن جنوری 4, 2003 میں پبلش کیا تھا. جو مین پوائنٹس ہیں انڈین نیوکلیئر ڈاکٹرائن کے, ٹھیک ہے, let discuss them one by one. Indian stance will be to build and maintain a credible minimum deterrent. Generally the most credible deterrence we have, ٹھیک ہے, in human history, that is a nuclear deterrence. ٹھیک ہے, آج تک cold war time period is witnessed that this deterrence really works. اگر آپ پورے کولڈ وار ٹائم پیریڈ میں دیکھیں تو ایک طرف ہمارے پاس سوویت رشیا تھا, دوسری طرف ہمارے پاس USA تھا, اور تقریباً کمپلیٹ کولڈ وار ٹائم پیریڈ میں they didn't engage with each other in any direct conflict. ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی ڈائریکٹ کانفلکٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہوئے ہوں. they use their proxies. بہت سارے ملکوں میں انہوں نے جا کے اپنی پراکسیز کے ذریعے سے وار کی ہیں, لیکن کبھی بھی وہ ڈائریکٹ کانفلکٹ میں انگیج نہیں ہوئے. 1962 کیوبن میزائل کرائسس, ٹھیک ہے, دیٹ واز اے ہائی ٹائم جب دے ور کلوز ٹو اے نیوکلیئر وار, لیکن اس ٹائم بھی جو نیوکلیئر ڈیٹرنس تھا اس کی وجہ سے
जो दोनों कंट्रीज ने जंग शुरू नहीं की। तो दुनिया का सबसे ज्यादा जो रिलायबल और क्रेडिबल डेटरेंस है वो न्यूक्लियर डेटरेंस है। डेटरेंस बेसिकली एक गारंटेड प्रोटेक्शन को कहते हैं, ठीक है। जब हम न्यूक्लियर डेटरेंस की बात करते हैं तो न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए जरूरी है कि जो कंट्री न्यूक्लियर डेटरेंस रखता हो उसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो। अगर किसी कंट्री के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है तो उसका न्यूक्लियर डेटरेंस इतना क्रेडिबल नहीं है। अगर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है, दो चीजें हैं जो न्यूक्लियर डेटरेंस के अंदर बड़ी बड़ी बड़ा मैटर करती हैं, ठीक है। वो है फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अगर आपके पास प्रॉपर डिलीवरी सिस्टम है और आप न्यूक्लियर जो वेपन है उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं तो यू क्रिएट अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस। और जो आपका अपोनेंट कंट्री है, राइवल कंट्री है, अगर उसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी कि आपके पास फर्स्ट यूज कैपेबिलिटी भी हो कि आप न्यूक्लियर जो वेपन है उसको फर्स्ट यूज कर सकें, और आपके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी हो कि अगर आपका एनिमी आपके ऊपर फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक कर देता है तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप सेकंड स्ट्राइक अपने एनिमी के ऊपर कर सको। तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इंश्योर करने से जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो साउंड होता है। So India basically claim that they are maintaining a minimum credible deterrent, but in fact, factually, it's not like that. अगर आप इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रॉम द डे वन देखें तो दे आर क्वाइट असर्टिव, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिंग देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम। एक और जो पॉइंट है इंडिया के न्यूक्लियर डेटरेंस का, विच इज नोन एज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ठीक है। मेन पंच ऑफ द इंडियन स्टैंस विल बी नो फर्स्ट यूज, but these will be used against nuclear attack in retaliation on territory or on its forces. So इंडिया ने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है कि वो किसी मुल्क के ऊपर पहले न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ देयर न्यूक्लियर डेटरेंस। Civil political leadership only can authorize these retaliation attacks, naming nuclear command authority. इंडिया में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है जो उनके प्राइम मिनिस्टर के और फिर उसके बाद सेकंड जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसके अंडर होती है। और यानी कि वो द क्लेम के उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कंप्लीटली सिविल पॉलिटिकल लीडरशिप के कंट्रोल में है, जब फैक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन या उसका यूज जो सा है वो इवेंचुअली मिलिट्री ने करना होता है। तो ठीक है, सम एक्सटेंड आप कह सकते हैं कि सिविल कंट्रोल होता है, सिविल पॉलिटिकल लीडरशिप का कंट्रोल होता है, दे ऑथराइज्ड, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो मिलिट्री ही ने करनी होती है। एक और पार्ट जो इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का है, दैट नॉन न्यूक्लियर स्टेट विल नॉट बी हिट बाय द न्यूक्लियर वेपन, कि वो इंडिया किसी ऐसे नॉन न्यूक्लियर स्टेट को हिट नहीं करेगा अपने न्यूक्लियर वेपन से, बट इन केस ऑफ मेजर अटैक्स बायोलॉजिकल और केमिकल, इंडिया विल हैव द ऑप्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन अगर उसके ऊपर किसी नॉन न्यूक्लियर स्टेट से कोई बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन यूज होता है तो देन दे कैन think of using their nuclear weapon. Strict control on the export of the fissile material, as mentioned in Fissile Material Cutoff Treaty (FMCT) declaration, will be followed. Another condition of their nuclear doctrine is India will strictly follow the guidelines for the nuclear free world on non-discriminatory basis on all across the globe. According to the most authoritative sources, Pakistan nuclear doctrine is based on the following claims. ठीक है, तो इंडिया का ये न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, ये उसके मेन पॉइंट्स हैं। और जब पाकिस्तान के हम न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की बात करते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो सा है वो एज सच कोई पब्लिश फॉर्म में हमारे पास नहीं है। जनरली एम्बिग्विटी इज समथिंग विच सूट्स द स्मॉलर स्टेट्स। अगर किसी स्टेट्स का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जैसे इजराइल है, इजराइल ने कभी भी अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसकी जो न्यूक्लियर स्ट्रेंथ है या उसका न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, उसको कभी पब्लिक नहीं किया, क्योंकि इजराइल इज अ स्मॉलर स्टेट।
एंड सेम इज द केस विद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक स्मॉलर स्टेट है, तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट इस चीज में है, पाकिस्तान को ये चीज सूट करता है कि वो अपने जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसको पब्लिक ना करे. सो हमारे पास कोई ऑफिशियल सोर्स तो नहीं है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है, बट there are a few claims that nuclear weapons are assurance for the territorial integrity of the country as well as national independence and sovereignty. Pakistani threat perception are only India-centric, and sole aim to having these weapons is to deter India from aggression. Nuclear weapons are essential for India's conventional superiority, to counter the Indian conventional superiority, as conventional balance of forces between India and Pakistan benefited India. So nuclear use is for balance of power in unconventional force ratios between the two sides. What does it mean? Um, uh, when we talk about the conventional balance of force between India and Pakistan, so India has an edge. ठीक है, इंडिया को कन्वेंशनल जो एरिया है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल फोर्स, इंडिया इज ऑलमोस्ट 2 times बिगर देन पाकिस्तान. जनरली पाकिस्तान और इंडिया में जो कन्वेंशनल फोर्स रेशियो है इट्स 1:2.2, और लेकिन देयर इज नो वरी अबाउट इट कि वो हमसे अगर इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल वॉरफेयर हमसे वो डबल है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जितनी बड़ी टेरिटरी को उन्होंने गार्ड करना है, तो अगर वो हमसे 3 टाइम भी ज्यादा हो जाए तो एज सच हम वी आर केपेबल ऑफ डिफेंड अवर लैंड. तो अगर पाकिस्तान और इंडिया की कन्वेंशनल वॉरफेयर में रेशियो 1:3 है तो इवन इट इज मैनेजेबल, और जो करंट रेशियो है पाकिस्तान इंडिया की कन्वेंशनल वॉरफेयर में इट्स अराउंड अबाउट 1:2.2. सो अगर पाकिस्तान इंडिया में कन्वेंशनल वॉर होती है तो हम इंडिया को बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि 1:2.2 इज अ quite sound, ठीक है, in terms of defending our land. Pakistan's strategic stance is that minimum credible deterrence. It is minimum because as these weapons have no other role but to deter the adversary. As I told you earlier that Pakistan nuclear program is India centric, or Pakistan is maintaining minimum credible deterrence. So when we talk about the minimum credible deterrence, what does it mean? You know, in conventional warfare, number of the weapons, ठीक है, they matters a lot, but in a nuclear deterrence, number of the nuclear arsenals are not matter much. कि अगर किसी कंट्री के पास 10 एटम बम है या 100 एटम बम है या 1000 एटम बम है, तो जो आपके न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है उसका जो नंबर्स है वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि मेरे ख्याल है अगर पाकिस्तान इंडिया को तबाह करना है तो 30-40 न्यूक्लियर बॉम्ब भी बहुत होंगे, ये भी शायद ज्यादा हो. तो अगर फॉर ए सेफ साइड पाकिस्तान के पास 50-60 बॉम्ब है, ठीक है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को पाकिस्तान ने इंश्योर करना है तो उसमें 20-30 बॉम्ब और ऐड कर लें, क्योंकि अगर सपोज इंडिया पाकिस्तान पे न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो हो सकता है कि उस यूजेज में कुछ पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है वो डैमेज हो जाए या वो यूजेबल ना रहे, तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए उसमें कुछ और ऐड कर लें. तो इंडिया को काउंटर करने के लिए न्यूक्लियर वॉरफेयर में अगर पाकिस्तान के पास 100 एटम बम होते हैं, राउंड अबाउट बात कर रहा हूँ, तो इट्स मोर देन एनफ. यानी कि आपको जरूरत नहीं है कि आप 1000 बम बना लें या 5000 बम बना लें या 100 बम बना लें, ठीक है, जो काम आपने 1000 बम से करना है वो 100 बम से भी हो जाएगा. तो जो नंबर है, नंबर ऑफ द न्यूक्लियर आर्सनल्स, ठीक है, इट्स नॉट मैटर मच इन न्यूक्लियर डेटरेंस, लेकिन कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये मैटर करता है, और मैंने आपको उसकी रेशियो में पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि पाकिस्तान इंडिया की कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर रेशियो क्या है. इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस करने से पहले इंडिया की जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है
सुंदर जी डॉक्ट्राइन था, इंडिया ने अर्ली 1980s के अंदर उसको अनाउंस किया. सुंदर जी डॉक्ट्राइन बेसिकली ये था कि क्योंकि पाकिस्तान लैक इन स्ट्रेटेजिक डेप्थ, अगर आप पाकिस्तान का मैप देखें तो पाकिस्तान लंबा सा मुल्क है और बहुत ज्यादा पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है. तो सुंदर जी डॉक्ट्राइन जो कि 1980s में इंडिया का मिलिट्री डॉक्ट्राइन था, 1980s में आया. उस डॉक्ट्राइन में ये था कि अगर पाकिस्तान को नॉर्थ और साउथ के अंदर जोन सा है वो काट दिया जाए, यानी नॉर्थ और साउथ के दरमियान जो पाकिस्तान के कम्युनिकेशन या रोड लिंक है उनको खत्म कर दिया जाए, यानी कि पाकिस्तान को इस सेंटर में राउंड अबाउट भावलपुर बॉर्डर का एरिया बनता है, भावलपुर साइड से पाकिस्तान के ऊपर एक मैसिव अटैक लॉन्च करके और इवन इंडस रिवर तक पाकिस्तान को या इंडस रिवर के आगे पाकिस्तान को पुश कर दिया जाए. तो अगर बावलपुर साइड से एक मैसिव अटैक इंडिया पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च करके इंडस रिवर तक आ जाए या इंडस रिवर के आगे तक आ जाए, तो पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न पाकिस्तान है उसका जो लैंड लिंक है सदर्न पाकिस्तान के साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा. तो ये बड़ा डेडली डॉक्ट्राइन था सुंदर जी डॉक्ट्राइन, जो अर्ली 1980s में इंडिया ने फॉर्म किया. इसको काउंटर करने के लिए सुंदर जी डॉक्ट्राइन को पाकिस्तान ने बेसिकली टू इन सर्च ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ठीक है, पाकिस्तान वाज नीडेड प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान. क्योंकि अगर इन केस इंडिया सुंदर जी डॉक्ट्राइन को एग्जीक्यूट करता है और नॉर्थ और साउथ जो पाकिस्तान का वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो पाकिस्तान के पास फिर पाकिस्तान को इसको काउंटर करने के लिए डॉक्ट्राइन ये था कि जो अफगानिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो प्रो पाकिस्तान हो. In other words, we can say that Pakistan was looking strategic depth in Afghanistan, क्योंकि itself Pakistan geography lack in strategic depth. So to find out strategic depth in Afghanistan, ठीक है, we started involving in Afghan affairs. हमारी हमेशा से ये कोशिश रही कि अफगानिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि पाकिस्तान को बैक करती रहे. और इसी सिलसिले में 1995 में तालिबानाइजेशन हुई और काबुल को कैप्चर किया गया. पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट ने उस पूरे एडवेंचर को बैक किया और फिर उसके बाद लेटर ऑन ये डेवलपमेंट चलती रही, ठीक है. उसके बाद राउंड अबाउट 2004 में इंडिया का नया मिलिट्री डॉक्ट्राइन आया जिसको कहते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन. कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन बेसिकली पार्ट है या एक्सटेंशन है जो सुंदर जी डॉक्ट्राइन है. सुंदर जी डॉक्ट्राइन के अंदर तो ये था कि पाकिस्तान के सेंटर में फुल फोर्स डिप्लॉय कर दी जाए और एक मैसिव अटैक पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च किया जाए. लेकिन जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन था उसमें यह था कि पाकिस्तान को डिफरेंट फ्रंट के ऊपर मैसिव अटैक से इंगेज किया जाए, यानी सिर्फ सेंटर में सिर्फ मैसिव फोर्स डिप्लॉय ना की जाए बल्कि डिफरेंट फ्रंट्स पाकिस्तान के लिए ओपन कर दिए जाएं और पाकिस्तान को अपने आप को डिफेंड करना बड़ा चैलेंजिंग हो. सो कोल्ड वॉर डॉक्ट्राइन बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ अ सुंदर जी डॉक्ट्राइन. और इसको काउंटर करने के लिए Pakistan round about in early 2000 they developed their full spectrum doctrine. दो इंडिया ऑफिशियली डिनाई करता है कि उसके पास कोई कोल्ड स्टॉक डॉक्ट्राइन का कोई प्रोग्राम है, या पाकिस्तान ऑफिशियली डिनाई करता है कि उसके पास फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्राइन है. बट अनऑफिशियल सोर्सेज से ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि कोल्ड स्टॉक डॉक्ट्राइन इंडिया का डॉक्ट्राइन है और फिर फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्राइन जोन सा है. इंडिया का जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन था उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने प्रिपेयर किया. फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्राइन क्या है? देखिए, न्यूक्लियर जो वेपन होता है, न्यूक्लियर वेपन में जो यील्ड होती है इट मैटर्स अ लॉट. यील्ड बेसिकली किसी भी न्यूक्लियर वेपन की जो डिवेस्टेटिंग पावर होती है इट इज कॉल्ड यील्ड, कि कितना डैमेज एक न्यूक्लियर वेपन जोन सा है वो दे सकता है. अब जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, दे यील्ड इन many 100,000 टन उनका यील्ड होता है. लेकिन जो बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन है जिसको हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी कहते हैं, ठीक है,
there is belief کہ پاکستان نے 2010 to onward بیٹل فیلڈ نیوکلیئر ویپن یا ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن ڈیولپ کر لیے تھے. بیٹل فیلڈ نیوکلیئر ویپن یا ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن بیسیکلی اٹس اے لو ییلڈ نیوکلیئر ویپن. اور لو ییلڈ نیوکلیئر ویپن کا مطلب یہ ہے کہ 5K ٹن آپ نیوکلیئر ڈیواسٹیشن کر سکیں. سو لو ییلڈ ویپن یا بیٹل فیلڈ نیوکلیئر ویپن وہ ویپن ہے جن کی ییلڈ بہت کم ہوتی ہے اور آپ ان کو جو وار فیئر ہے اس میں یوز کر سکتے ہیں. تو انڈیا کا جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان نے ٹیکٹیکل اور بیٹل فیلڈ نیوکلیئر ویپن ڈیولپ کیے. اور پھر ان کا جو ڈیلیوری سسٹم ہے اس کو انشور کرنے کے لیے پاکستان نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نصر میزائل کے ٹیسٹ کیے. ٹھیک ہے, تو نصر میزائل بیسیکلی ہمارا جو فل اسپیکٹرم ڈاکٹرائن ہے اس کا پارٹ ہے. اور نصر میزائل کے ٹیسٹ کرنا اور لو ییلڈ نیوکلیئر ویپن اور ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن. سو فل اسپیکٹرم ڈاکٹرائن سے بیسیکلی ہم نے جو انڈیا کا کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن تھا اس کو افیکٹولی کاؤنٹر کیا. اور انڈیا کے کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن کو کاؤنٹر کرنے کے بعد ایسے اب ہمیں افغانستان کے اندر کوئی بہت زیادہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ضرورت نہیں رہی جیسے شاید ہمیں 1980s میں یا 1990s میں افغانستان میں ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ضرورت تھی. اب ویسی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہمیں نہیں چاہیے تھی کیونکہ فل اسپیکٹرم ڈاکٹرائن ہے, ہمارے پاس نصر میزائل ہے, پھر بیٹل فیلڈ نیوکلیئر ویپن ہے. تو اٹس مور دین انف ٹو کاؤنٹر اینی کائنڈ آف ایڈونچر فرام انڈیا. تو اس وجہ سے اس پاکستان کو اب اس لیے پاکستان اب افغانستان کے اندر کوئی بھی ہے مطلب پاکستان کی جو فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ یہ کہ افغانستان کے اندر اسٹیبلائزیشن ہے. ٹھیک ہے, اگر پاکستان کے اندر افغانستان میں پرو پاکستان گورنمنٹ نہیں بھی آتی تو اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, بس وہ گورنمنٹ انٹائے پاکستان نہ ہو. ایز انڈیا ایز ایڈوانٹیج ان کنونشنل آرمی, تو انڈیا کو کنونشنل آرمی میں ایڈوانٹیج ہے تو obviously اس ایڈوانٹیج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو بیسٹ رپلائی ہے وہ نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے. راؤنڈ اباؤٹ ان ارلی 2000 پاکستان فارم نیشنل کمانڈ اتھارٹی. National Command Authority comprising the Employment Control Committee, Development Control Committee and Strategic Plan Division is the center point of all decision making regarding nuclear issue. Nuclear assets are considered to be safe, secure and almost free from risk of improper or accidental use. These were the main attributes of the Pakistan undeclared nuclear doctrine. It has a 3 distinct policy objective. اگر پاکستان کے ہم نیوکلیئر ڈاکٹرائن کے آبجیکٹیوز کی بات کریں, deter a first nuclear use by India. ٹھیک ہے, اگر انڈیا فرسٹ نیوکلیئر یوز کرتا ہے تو پاکستان must have maintained second strike capability. Enable Pakistan to deter Indian conventional attack. Allow Islamabad to internationalize the crisis and invite outside intervention in the unfavorable circumstances, the external balancing factor. ٹھیک ہے, سو یہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ڈاکٹرائن ہے اس کے کچھ پرائمری آبجیکٹیو ہیں. پاکستان کوئی ایز سچ پاکستان از ناٹ اڈہیئر ٹو اینی نو فرسٹ یوز پالیسی, کیونکہ اگر اوبیسلی پاکستان نو فرسٹ یوز پالیسی کو اڈہیئر کرے تو پاکستان مطلب کانٹ ڈیٹر انڈیا. ٹھیک ہے, پاکستان کانٹ ڈیٹر انڈیا ان نیوکلیئر ٹرمز. اچھا, انڈین نیوکلیئر ویپن سسٹم ول بی ٹرائیڈ کیا ہوتا ہے, یعنی کہ انڈیا جو سا ہے وہ وایا لینڈ پاکستان کے اوپر نیوکلیئر اسٹرائک کر سکتا ہے وایا دیئر بیلسٹک میزائلس. ٹھیک ہے, بائی سی دے کین اٹیک آلسو آن پاکستان. انڈیا کے پاس نیوکلیئر امپاورڈ فیول سب میرینز ہیں. اس کے علاوہ وایا دیئر ایئر کرافٹ دے کین اسٹرائک آن پاکستان. سو انڈیا کا جو نیوکلیئر ڈاکٹرائن ہے بیسڈ آن ٹرائیڈ, یعنی انڈیا ہمارے پاس خشکی سے, ہوا سے اور سمندر سے تینوں جگہوں سے نیوکلیئر اٹیک کر سکتا ہے. ایز فار ایز پاکستان از کنسرن, پاکستان نیوکلیئر ڈاکٹرائن از ناٹ ٹرائیڈ کیونکہ ایز سچ ہمارے پاس نیوکلیئر امپاورڈ سب میرین نہیں ہے.
और पाकिस्तान के पास जो सबमेरीन्स हैं दे आर कन्वेंशनल, मतलब दे आर केपेबल ऑफ लॉन्चिंग न्यूक्लियर मिसाइल्स, ठीक है, लेकिन वो न्यूक्लियर फ्यूल्ड इम्पावर्ड सबमेरीन नहीं है। मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि एक आम सबमेरीन और जो न्यूक्लियर फ्यूल्ड इम्पावर्ड सबमेरीन होती है इनमें क्या फर्क होता है। जो एक आम सबमेरीन होती है जनरली उसको कुछ टाइम पीरियड के बाद 2-3 दिन के बाद उसको जो वाटर सरफेस है उसके ऊपर आना पड़ता है, ठीक है, अपने ऑक्सीजन टैंक से उनको फुल करने के लिए, और उसके बाद फिर वो दोबारा अंडर वाटर चली जाती है। जो न्यूक्लियर फ्यूल्ड एम्पावर्ड सबमेरीन होती है इट कैन लास्ट अंडर द वाटर फॉर मैनी मंथ्स। तो जनरली जो सबमेरीन होती है वो ट्रेस तब होती है कि जब वो सरफेस पे आ जाए या जब वो कम्युनिकेशन करे। ये दो मीन्स हैं जिससे आप किसी सबमेरीन को ट्रेस कर सकते हैं। तो अगर एक सबमेरीन जोन सी है वो बिल्कुल पानी के नीचे है और वो कोई किसी तरह की कम्युनिकेशन नहीं कर रही तो इट्स नॉट इजी टू ट्रेस दैट सबमेरीन। तो जो न्यूक्लियर फ्यूल्ड एम्पावर्ड सबमेरीन होती है क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक पानी के नीचे रह सकती है, वो महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है, तो और उसके बाद अगर वो कोई कम्युनिकेशन ना करे और उसकी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट ना हो तो इट्स नॉट इजीली ट्रेसेबल। आप न्यूक्लियर एम्पावर्ड सबमेरीन को ट्रेस नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर फ्यूल्ड एम्पावर्ड सबमेरीन नहीं है, इंडिया के पास है। तो पाकिस्तान जोन सा है वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अपनी इंश्योर करता है थ्रू देयर मिसाइल्स प्रोग्राम एंड थ्रू देयर एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। पाकिस्तान के पास ऑगस्टा है और रिसेंटली पाकिस्तान ने एक टेस्ट भी कंडक्ट किए हैं। तो पाकिस्तान सबमरीन से न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर सकता है, ठीक है। तो टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं पाकिस्तान आल्सो कीपिंग अ ट्रायड न्यूक्लियर वेपन सिस्टम। काफी डिटेल है इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, अगर आप लोगों के क्वेश्चन होंगे तो उसमें मैं डिस्कस कर लूंगा। नाउ कम टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन regimes. The most famous international nuclear non-proliferation regime is IAEA, International Atomic Energy Agency. Then we have Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT. Then we have Nuclear Supplier Group. Then PTBT, Partial Test Ban Treaty. Then we have Comprehensive Test Ban Treaty, and after that we have Fissile Material Cutoff Treaty, also known as FMCT. First, have a look on International Atomic Energy Commission. It was set up in 1957. जो Atom for Peace या Nuclear Energy for the Peace, ठीक है, to ensure the nuclear energy for the peace, this regime was formed in 1957. और जो जितना भी न्यूक्लियर ट्रांसफर सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स दुनिया में रन हो रहे हैं, आईएईए के वॉच डॉग्स उनको मॉनिटर करते हैं। थोड़ी इसकी डिटेल में आपको लेक्चर के शुरू में दे चुका हूँ, बहुत ज्यादा इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। एनपीटी की मैं बात करूंगा, ठीक है। इट इनएक्टेड इन 1970। ऑलमोस्ट 199 स्टेट्स हैं जो कि इसके सिग्नेटरी हैं। इससे जो बाहर स्टेट्स हैं वो सिर्फ 4 हैं, नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है और इजराइल है। 1985 में नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी के ऊपर साइन कर दिए थे, लेकिन later they withdrew they withdrew from the NPT in 2003 I guess. उसके बाद वो मतलब they withdrawn from the NPT पहले 85 में साइन करने के बाद। NPT बेसिकली जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन है उसको अबेंडन करती है। अगर आप NPT के सिग्नेटरी हैं तो आप जो सा है वो न्यूक्लियर टेस्ट या न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर ए मिलिट्री पर्पस रन नहीं कर सकते। देयर इज एक्सेप्शन ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो 5 परमानेंट मेंबर है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के, जिसमें चाइना है, रशिया है, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन,
क्योंकि इन्होंने एनपीटी की जो रिजीम है उसकी फॉर्मेशन से पहले ही न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिए थे। तो मतलब दे आर द ओनली ऑथोराइज्ड न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यानी कि जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर्स हैं सिर्फ वो ऑथोराइज्ड हैं कि वो जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको फॉर ए पीसफुल पर्पसेस ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज को। ठीक है, तो इसके अलावा 2008 में इंडिया गॉट एनएसजी वेवर फ्रॉम अमेरिका। 2008 में ये वो टाइम पीरियड है जब यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, और उस डील के नतीजे में इंडिया को अपना सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था उसको सेपरेट करना पड़ा था। तो 2008 में एनएसजी वेवर मिला इंडिया को, और उसके बाद फिर जो इंडिया और अमेरिका की न्यूक्लियर कॉपरेशन है ये स्टार्ट हुई। ऐसा बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकी, यूएस काफी डिसअपॉइंट हुआ है। इनका ख्याल था कि शायद कुछ सालों में जो यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील है मैच्योर हो जाएगी, लेकिन somehow वो इतनी मैच्योर नहीं हो सकी। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बेसिकली जो न्यूक्लियर फ्यूल है या जो टेक्नोलॉजी है या उससे रिलेटेड जो बाकी इक्विपमेंट है, ठीक है, उनको उनको जो ट्रांसफर है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद है हमारे पास पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी on August 5, 1963. Representative of the United States, Soviet Union, and Great Britain signed the Limited Nuclear Test Ban Treaty, which prohibited the testing of the nuclear weapon in outer space, underwater, or in the atmosphere. So this is also known as Limited Nuclear Test Ban Treaty, या Partial Test Ban Treaty. So Partial Test Ban Treaty 1963 से इन्फोर्स्ड है, और ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है यानी कि उनको कोई भी ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट कोई भी कंट्री जो सा है वो स्पेस में या पानी में, ओशंस जिसको हम कहते हैं, या एटमॉस्फेयर के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता। पीटीबीटी ऐसे सारे जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं इनको बैन करता है। पीटीबीटी के बाद जो नेक्स्ट जो मोस्ट फेमस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो है सीटीबीटी, Comprehensive Test Ban Treaty. In 1996, the United States General Assembly adopted the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, prohibiting any nuclear weapon test, explosion, or any other nuclear explosion. President Bill Clinton was the first world leader to sign the treaty, which eventually was signed by the more than 180 nations. However, the US Senate rejected the treaty in 1999. So that's how that treaty almost became inactive. जब 1999 में यूएस जो सेनेट थी उसने इस ट्रीटी को रेटिफाई करने से इनकार कर दिया था। तो 1995 टू 1999 वो टाइम पीरियड है जब सीटीबीटी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, पाकिस्तान इंडिया को भी प्रेशराइज किया गया। बेसिकली सीटीबीटी पुट अ कॉम्प्रिहेंसिव बैन ऑन अ न्यूक्लियर टेस्ट कि आप जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया ने, पाकिस्तान ने इसको साइन नहीं किए। 1999 में यूएस सेनेट ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। तो तब से सीटीबीटी जो सा है वो मैच्योर नहीं हो सका। सो उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर जो डेटरेंस है, न्यूक्लियर डेटरेंस को इंश्योर करने के लिए a country must have a proper delivery system. ठीक है, there are three kinds of delivery system. एक जिसको हम कहते हैं ABMs, जिसमें आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, सरफेस टू सरफेस यूज होते हैं, दे फॉर्म अ बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। तो बैलिस्टिक मिसाइल, या दूसरे हमारे पास जो दूसरा डिलीवरी सिस्टम है जिसमें बस क्रूज मिसाइल्स होते हैं, वो हम कंट्रीज यूज करती हैं। ठीक है, क्रूज मिसाइल जो सा है वो बैलिस्टिक में उसकी जो वर्किंग है वो बैलिस्टिक मिसाइल से डिफरेंट है। और थर्ड जो होता है वो वाया एयरक्राफ्ट आप न्यूक्लियर अटैक जो सा है वो लॉन्च कर सकते हैं। बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल टॉपिक है ये। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड तो उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ।
اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. حیدر علی کا ایک کوشچن ہے سر, انڈیا نے کب نیوکلیر ٹیسٹ کیا تھا؟ انڈیا کا فرسٹ نیوکلیر ٹیسٹ 1974 کا تھا اور سیکنڈ 1999 میں کیے تھے ان رو. اچھا, جب میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے نیوکلیر ٹیسٹ کی, تو اس میں بھی ایک پلوٹینیم بیسڈ بوم ہے, ایک جون سا وہ سمپل نیوکلیر بوم ہے. جو پلوٹینیم بوم ہے وہ آلموسٹ 1000 ٹائم زیادہ ڈیڈلیسٹ ہے جو نیوکلیر بوم ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہائیڈروجن بم ہے. ہائیڈروجن بم پلوٹینیم بیسڈ ہوتا ہے جنرلی, اور ہائیڈروجن بم تقریباً 1000 ٹائم زیادہ ڈیوسٹیٹنگ ہے جو ہمارے پاس ایک نارمل نیوکلیر بم ہوتا ہے. اچھا, عنایا عباس کا ایک کوشچن ہے, ٹرکی ریسنٹلی said that it should have nuclear weapons. Sir, please comment on it. How Turkey will do it, being a signatory of NPT? Obviously, Turkey can't do it. Acha, Turkey is a member of a NATO bloc, NATO alliance, and NATO alliance is under the protection of the US nuclear umbrella. Take an example of Japan. ٹھیک ہے, جاپان از انڈر دا یو ایس نیوکلیر امبریلا. جاپان بھی ہے اس میں, ساؤتھ کوریا بھی ہے اس میں, اور ٹرکی بھی ہے. تو ٹرکی کا یہ جو ریٹرک ہے یہ پولیٹیکل زیادہ ہے کہ وہ اپنا نیوکلیئر جو پروگرام ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن شاید ٹرکی کے لیے یہ سب کچھ کرنا اتنا ایزی نہ ہو. اور ایز سچ ٹرکی کو کہیں سے ڈائریکٹ نیوکلیئر اٹیک کا چیلنج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹرکی کا کوئی ایسا نیبرنگ کنٹری نہیں ہے جو ٹرکی کے اوپر ڈائریکٹ نیوکلیئر اٹیک لانچ کر سکے. تو ایسے ٹرکی نیئر فیوچر میں تو ایسا کچھ نہیں کرنے لگا. نوید ایم خان سر, واٹ آر دا prerequisite of the IAEA safeguard? There is a hell of detail. ٹھیک ہے, when we talk about the IAEA safeguard, اس میں obviously کیونکہ جو پیسفل پرپزز کے لیے نیوکلیئر پروگرام ہوتا ہے وہاں پہ آئی اے کے انسپیکٹر پراپر وزٹس کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بھی کسی بھی جو کنٹری ہے اس کی جو, جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس 100 نیوکلیئر بامز ہیں, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے پاس اتنے زیادہ نیوکلیئر بام ہیں, اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ there is a myth about Pakistan nuclear program that it's a fastest growing nuclear program of the world. ٹھیک ہے, it's factually it's not correct. How? دیکھیں, آپ کو نیوکلیئر ویپن ڈیولپ کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے ہائی انرچ یورینیم. ٹھیک ہے, اگر ہائی انرچ یورینیم آپ کے پاس ہے, فسائل مٹیریل ہے, تو آپ نیوکلیئر ویپن ڈیولپ کر سکتے ہو. اور انڈیا کے پاس, ٹھیک ہے, دیر آر اسٹیٹسٹکس کہ پاکستان سے کہیں زیادہ, آلموسٹ 10 ٹائم مور دین پاکستان. ٹھیک ہے, انڈیا کیپس اے فسائل مٹیریل. تو اگر انڈیا کے پاس اتنا سارا فسائل مٹیریل ہے, though they are not converting their fissile material into a nuclear weapon, but they are fully capable of making lots of nuclear weapon. ٹھیک ہے, تو وہ اپنا جو فسائل مٹیریل ہے اس کو وہ کنورٹ نہیں کر رہے نیوکلیئر ویپن میں, لیکن وہ جب چاہیں کنورٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس راؤنڈ اباؤٹ 100 to 120 نیوکلیئر بامز ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اپنا جو فسائل مٹیریل ہے, کیونکہ منیمم ڈیٹرنس انشور کرنا ہے, تو اس نے جتنی اس کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے اتنے بام کریٹ کر لیے ہیں. تو انڈیا کے نیوکلیئر بام اگر انڈیا چاہے تو پاکستان سے 10 ٹائم زیادہ نیوکلیئر بام کریٹ کر سکتا ہے, لیکن وہ اپنا جو فسائل مٹیریل ہے اس کو ٹرانسفارم نہیں کرے نیوکلیئر ویپن میں. اٹس اپ ٹو دیم. اچھا, ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے, یا جو انٹرنیشنل آئی اے ای اے ہے یا باقی جو انٹرنیشنل نان پرولیفریشن ریجیمز ہیں ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کس کنٹری کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ کس پیس سے گرو کر رہا ہے؟
generally use they for this purpose they use their satellites. सैटेलाइट्स के अंदर थर्मल कैमरास, थर्मल सेंसर्स होते हैं. जब किसी एटॉमिक रिएक्टर के अंदर फिशन या फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, सैटेलाइट के अंदर जो थर्मल सेंसर्स होते हैं वो उस हीट को डिटेक्ट कर लेते हैं. तो वो इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, सपोज ये सुबह 8 से 5 बजे तक इसने काम किया, और जो किसी भी जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसका जो डिजाइन होता है उससे आप उसकी कैपेसिटी को गेस कर सकते हैं कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर कितना फिसाइल मटेरियल प्रोड्यूस कर सकता है. तो किसी अगर आप किसी भी मतलब देयर आर फ्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स वी हैव, ठीक है, अराउंड द ग्लोब, कोई इतने ज्यादा नहीं है. और अगर उन जो हमारे पास कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो दुनिया में हैं, जितने भी हैं, उनको 24/7 वाया सैटेलाइट्स आप उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हो, तो आप इजीली राउंड अबाउट या एक फिगर बता सकते हैं कि इस कंट्री के पास एड अप करके, सम अप करके सबको, कि इस कंट्री के पास इस क्वांटिटी में फिसाइल मटेरियल अवेलेबल है. ठीक है, तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है किसी कंट्री का जो न्यूक्लियर पेस है उसको गेस करना. सर स्ट्रेटेजिक डेप्थ एक्सप्लेन कर दें. स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये है क्योंकि पाकिस्तान, मैंने शुरू में लेक्चर में बताया कि पाकिस्तान का जो ज्योग्राफी है, ठीक है, वो वर्टिकल ज्यादा है और हॉरिजॉन्टल कम है. सो क्योंकि पाकिस्तान लंबा सा मुल्क है और पाकिस्तान की जो चौड़ाई है वो कम है, तो पाकिस्तान के किसी भी एरिया को टारगेट करना इंडिया के लिए आसान है. और जैसे इंडिया का जो सुंदर जी डॉक्ट्राइन था या फिर कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन था, ठीक है, जिसमें दे प्लान टू कट ऑफ पाकिस्तान इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, टू डिस्कनेक्ट पाकिस्तान नॉर्थ फ्रॉम इट्स साउथ. तो अगर ये बेसिकली था कि पाकिस्तान लैक इन स्ट्रेटेजिक डेप्थ टू ओवरकम देयर डेफिशिएंसी, ठीक है, दे नीड अफगानिस्तान लैंड टू स्ट्राइक बैक ऑन इंडिया, कि अफगानिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो हमें अफगानिस्तान की टेरिटरी को इंडिया के अगेंस्ट यूज करने दे, ताकि हम इन केस अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक लॉन्च होता है और पाकिस्तान तबाह हो जाता है, तो अल्लाह खुदा न खास्ता, तो हम अफगानिस्तान से इंडिया के ऊपर स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक को इंश्योर कर सके. लेकिन इट्स आउटडेटेड कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजिक डेप्थ का. अब जब से फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्राइन आया है, पाकिस्तान को ऐसा अब किसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जरूरत नहीं है. कश्मीर एज ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट एक्सप्लेन कर दें. वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत से लोग ये कह रहे हैं, इवन पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की तरफ से ये बात की जा रही है कि कश्मीर के ऊपर कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान इंडिया की कोई न्यूक्लियर वॉर हो सकती है. ऐसा नहीं है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कोई एयर स्ट्राइक की या इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक लिमिटेड वॉर लॉन्च करता है तो उससे जो हमारा न्यूक्लियर डेटा है वो ब्रीच हो जाएगा. ऐसा नहीं है. देयर इज अ न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड, ठीक है, एंड अनलेस इंडिया leveled our nuclear threshold, ठीक है, we are not going to think to use of our nuclear weapon. हम जब न्यूक्लियर वॉरफेयर को एक्सप्लेन करते हैं तो एक टर्म हम यूज करते हैं which is known as escalation ladder. एस्केलेशन लेडर क्या है? अगर इंडिया पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर होती है तो इनिशियली तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज लाइकली दैट इट विल कन्फाइन टू द डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ कश्मीर ओनली, कि कश्मीर से ये बाहर नहीं जाएगी. लेकिन अगर वो लिमिटेड वॉर कश्मीर से बाहर जाती है तो इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल बैलेंस विद इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान कैन इजीली डिफेंड देयर लैंड. मैं पहले बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान इंडिया की जो कन्वेंशनल वॉरफेयर में रेशो है वो 1:2.2 है. तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत ज्यादा टफ टाइम दे सकता है. रिसेंटली आपने अभी देखा कि जब इंडिया ने बालाकोट में स्ट्राइक किया तो दे केम फ्रॉम 4 साइड्स, और जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक किया तो वी वेंट देयर फ्रॉम 6 साइड्स. ठीक है, हमने 6 साइड पे हमने इंडिया पे अटैक लॉन्च किया और हमने उनके टारगेट लॉक किए.
और अगर हम उन टारगेट्स को हिट करते तो इंडियन कैजुअलिटीज मस्ट बी इन मैनी थाउजेंड्स। तो सबसे पहले इंडिया ने जो स्पाइस 2000 जो इसराइल में मेड बॉम्ब है बालाकोट में, जब उसको ड्रॉप किया तो इट फेल्ड टू डिटेनरेट एंड दे मिस देयर, लकीली दे मिस देयर टारगेट, वो उनका बॉम्ब भी टारगेट पे नहीं लगा। तो इन टर्म्स ऑफ आर्मी वी डिसीव इंडिया। फिर जब एयरफोर्स की बारी आई वी डिसीव इंडिया। हमारा जो स्ट्राइक थी वो बहुत साउंड थी, बहुत इफेक्टिव थी, एंड इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर इंडिया। और फिर हमने इंडिया का दो जो उनके एयरक्राफ्ट्स हैं MiG-21 बाइसन और Su-30, हमने वो गिराए। फिर उनका अपना जो एक चॉपर था वो फ्रेंडली फायर से गिर गया। फिर उसके बाद जब हम नेवल साइड के ऊपर जाते हैं तो नेवल साइड पे पाकिस्तान ने कुछ ही 27 फेब के 2-3 दिन की बात है, ठीक है, वी डिटेक्टेड देयर सबमरीन नियर टू आवर इंटरनल वाटर। ठीक है, और यू नो व्हेन सबमरीन इज डिटेक्टेड इट इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जब वो डिटेक्ट हो जाए तो समझे वो डिस्ट्रॉय हो गई। गो के पाकिस्तान ने उसको हिट नहीं किया, लेकिन इट वाज अ बिग फेलियर एट इंडियन एंड कि उनकी सबमरीन डिटेक्ट हो गई, उनकी एयर फोर्स फेल हो गई, उनकी मिलिट्री फेल हो गई। तो मैं तो सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर की बात कर रहा हूँ। तो अगर जब तक पाकिस्तान बड़ा साउंडली रिस्पॉन्ड कर सकता है इंडिया को कन्वेंशनल वॉरफेयर में, हम न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करेंगे। और अगर सपोज कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में कोलैप्स कर जाते हैं, अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर में कोलैप्स हो जाता है तो इनिशियली पाकिस्तान विल यूज अ बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन और अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, with low yield devastating capacity, ठीक है। और अगर उससे भी काम नहीं चलता देन वी कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ यूजिंग ऑफ अ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन। उसके बाद हम सोच सकते हैं कि हमने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन यूज करना है या नहीं करना। तो मेरा नहीं ख्याल, पहले तो कन्वेंशनल वॉरफेयर का टाइम पीरियड में ही इंडिया को हम अच्छा खासा टफ रिप्लाई या एक साउंडली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फिर हमारे पास फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्राइन है जो बेस करता है नसर मिसाइल पे और टैक्टिकल और बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। फिर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर, तो अभी न्यूक्लियर वॉरफेयर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज टू फॉर, इसका कोई दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। इवन कन्वेंशनल वॉरफेयर का भी कोई चांस नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि नियर फ्यूचर के अंदर हमको कुछ एरियल स्ट्राइक दोनों साइड से नजर आ जाए, ठीक है, इससे ज्यादा का ऐसा कुछ होने नहीं लगा। सर न्यूक्लियर फ्लैश एक्सप्लेन कर दीजिएगा। न्यूक्लियर फ्लैश मीन एरिया और लोकेशन which is prone to a nuclear war is known as nuclear flash point. So I think I should sign off now. Allah Hafiz.